Students, this is the part third of the chapter on the face of it. So our story reached when Derry asked Mr. Lamb that he had friends, and Mr. Lamb replied that he have hundreds of friends. He said that friends everywhere, people come in every day, knows me, the gate always open, they come and sit here, and in front of the fire in winter, kids come for the apples and pears, and for toffee I make toffee with honey. Anybody comes, so have you. ठीक है, तो मिस्टर लैम उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं ये सब बातें कि हाँ सब आते हैं यहाँ पे. They sat there by the fire in winter season. Kids came to pick apples and to take the honey toffees made by him. Then Daddy said him that, but I am not a friend. Certainly you are. So far I am concerned, what have you done to make me think you are not? You don't know me. You don't know where I come from, even what my name is. Why should that signify? Do I have to write all your particulars down and put them in filling box before you can be a friend? So with these lines, Mr. Lamb want to make him comfortable, and he said that Mr. Lamb said that these things are not important. That you don't tell me his name. You don't tell me. Then he added that he might not visit the place in future, and Mr. Lamb also said to him that he doesn't need his particulars before becoming a friend with him. Okay. Then Derry said, I suppose no. Mr. Lamb, you could tell me your name if you choose and not if you didn't. ठीक है, तो अगर तुम बताना चाहते हो तुम बता सकते हो मुझे अपना नेम, नहीं बताना चाहते हो तो नहीं बता सकते हो. ओके. देन डैरी अपना नेम बताता है वो. डैरी ओनली इट्स डेरिक बट आई हेट डैड. डैरी if I am your friend, you don't have to be mine. I choose that. Mr. Lamb, certainly. I might never come here again. You might never see me again, and then I couldn't still be a friend. Mr. Lamb, why not? Derry, how could I? You pass people in the street and you might even speak to them, but you never see them again. It doesn't mean they are friends. Okay, so Derry replied that his name was Derek, but he disliked it and he wanted to be called Derry instead. ठीक है, तो वो चाहता था कि लोग उसे Derry कह के बुलाएं. He added that he might not visit the place in future and then they would not remain friends anymore. ठीक है, वो कह रहे हो सकता है वापस ना आए. Mr. Lamb asked the reason and Derry replied that one crosses many people while walking down the street, might speak to a few of them and never see them again. It didn't mean that they had become friends. ओके. सो डेरी कह रहा है कि हाँ तो काफ़ी लोग यहाँ से जाते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है वो आपसे बात भी कर लेते होंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके फ्रेंड्स बन गए हैं. ओके, लेट्स सी द अनदर पेज. सो मिस्टर लैम्ब उसे क्या रिप्लाई करते हैं. मिस्टर लैम्ब उसे कह रहे हैं दैट डजंट मीन दे आर एनिमीज ईदर. ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर मान लो वो फ्रेंड्स नहीं है तो वो एनिमीज भी नहीं है. नो दे आर, डेरी सब क्या कहते हैं, नो दे आर जस्ट नथिंग. मिस्टर लैम्ब कहते हैं people are never just nothing, never. They are some people there are some people I hate. अब डेरी अपनी मन की बातें कह रहा है. मिस्टर लैम्ब, that would do you more harm than uh, any uh, any bottle of acid only burns your face. ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं. Mr. Lamb commented him that it doesn't mean that strangers are our enemies if we don't talk to them. एंड डेरी सेड डेट दे वर नथिंग. अब डेरी जो है वो अपनी विचार बता रहा है कि अगर वो हमारे फ्रेंड्स भी नहीं हैं तो वो हमारे एनिमीज़ नहीं है, लेकिन वो कुछ नहीं है, दे आर नथिंग. ठीक है, तो मिस्टर लैम्ब उसे ये बता रहे हैं that this hatred which he have in his mind for the people. Mr. Lamb replied that hatred would harm him more than the acid that had only affected his face. ठीक है, तो उसे बता रहे कि जो हेट्रेड तुम्हारे मन के अंदर है लोगों के प्रति ये तुम्हें ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी उस एसिड से भी ज़्यादा जिसने तुम्हारा सिर्फ फेस को बर्न अप किया है. ठीक है, क्योंकि उसने यहाँ पे वर्ड किया ना ओनली बर्न्स योर फेस, तो डेरी इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा उसे स्ट्रेंज लगती है और वो कहता है ओनली. Mr. Lamb, like a bomb, only blew up my leg.
देयर्स थिंग कैन हैपन, यू कैन बर्न योर सेल्फ इन साइड। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम। ठीक है, अब अपनी एग्जांपल दे रहा है कि हाँ जैसे कि एक बॉम्ब है, लाइक अ बॉम्ब जिसने सिर्फ मेरी एक लेग को ब्लू अप किया है, लेग मेरी ख़राब की है। इससे भी ज़्यादा वर्ड्स, इससे भी ज़्यादा बैड चीज़ें हो सकती थी। यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इन साइड में पूरा पूरा जल सकता था। ठीक है, तभी डेरी क्या रिप्लाई कर रहा है, क्योंकि द ओनली हेयर द ओनली मोटिव ऑफ मिस्टर लैम्ब इज़ टू मोटिवेट हिम टू एक्सेप्ट द रियलिटी। ओके, देन what Derry said, after I would come home, one person said he would have been better off stopping in there in the hospital. He'd be better off with others like himself. She thinks blind people only ought to be with other blind people and idiot boys with idiot boys, with the idiot boys. ओके, सो यहाँ पर मिस्टर लैम्ब ये ऐड कर रहे हैं कि डैट मिस्टर लैम्ब लाइट हेट्रेड, उसने ये कहा कि जो हेट्रेड है वो एसिड से भी ज़्यादा खतरनाक है। देन डेरी कमेंटेड डैट only he has using the only word here. Mr. Lamb said that yes, maybe a bomb explosion blew up his leg, but there were worse things happen. One could burn himself inside. Then Derry said that when he had returned from the hospital, वो किस्सा सुना रहा है, that a person said that it was better if he had remained there with people like him. He added that people think all disabled people should remain together at one place. ठीक है, लिखा ना idiot boys with idiot boys। तो डेरी कह रहा था कि हाँ लोग को ये कहना था कि उसे उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो ऑलरेडी इसी तरह के पेन में है, ऑलरेडी इसी तरह की जिनमें प्रॉब्लम्स हैं। देन व्हाट मिस्टर लैम्ब रिप्लाइड, एंड पीपल विद नो लेग्स ऑल टुगेदर। ठीक है, तो मिस्टर लैम्ब ये ऐड कर रहे हैं कि हाँ इसका मतलब ये हुआ कि जिनकी लेग्स नहीं है उनको साथ में रहना चाहिए। देन मिस्टर लैम्ब, द गेट्स ऑलवेज ओपन डेरी बट दिस इजंट माइन। You need not to be. Yes, we have some lines here actually. Let's do that first. Legs all together, that's right. What kind of a world would that be? At least there would be nobody to stare at you because you weren't like them. ठीक है, तो अभी वो मिस्टर लैम्ब से कह रहे हैं कि हाँ जिनकी लेग्स नहीं है उनको साथ में रह लेना चाहिए। तो डेरी कह रहा है वो ठीक था, डेट्स राइट, क्योंकि कोई भी फिर स्टेयर नहीं करता, एक दूसरे को ऐसे घूरता नहीं। Mr. Lamb, so you think you are just the same as all other people with burned faces? Just by what you look like? Everything's different, everything's the same, but everything is different itself. और मिस्टर लैम कह रहे हैं कि क्या तुम उन सभी लोगों की तरह हो जिनकी फेसेस जल चुके हैं। ऑल द ही एडेड एवरीथिंग वाज, उसने ये भी कहा था कि उनकी अपीयरेंस सेम हो सकती है क्योंकि उनका जो फिजिकल इम्पेयरमेंट है वो सेम है, तो वो अपीयरेंस उनकी सेम हो सकती है। ऑल दो ऑल थिंग्स आर द सेम येट दे आर डिफरेंट, लेकिन उन्होंने कहा लेकिन फिर भी चीज़ें डिफरेंट हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट। डेरी जो है वो क्या कहता है, डेरी एट लीस्ट देयर वुड बी नोबडी, ये तो हो गया हमारा। डेरी, हाउ डू यू मेक ऑल डेट आउट? मिस्टर आई एम वॉचिंग, लिसनिंग, थिंकिंग, I would like a place like this, a garden. I would like a house with no curtains. The gate always open. ठीक है, तो डेरी थोड़ी उसकी बातें सुन के उसे कंफ्यूज हो जाता है। एंड he added that everything was different. Derry was confused. Mr. Lamb said that our habits of watching, listening and thinking differently made us different from each other. ठीक है, वो एक एग्जांपल दे रहा है कि जैसे हमारी जो हैबिट्स हैं ये वॉचिंग, लिसनिंग, थिंकिंग की अलग अलग हो सकती हैं। एंड Derry said that he liked Mr. Lamb's house and garden. ठीक है, उसने कहा ना I would like a place like this. Then he replied that the gate always open. उसने बोला तुम आ सकते हो क्योंकि गेट जो है वो हमेशा ओपन रहते हैं। Okay, the gate always open. But this isn't mine. Mr. Lamb, everything yours if you want it. What's mine is anybody's. So I could come here again even if you were out. I could come here. Mr. Lamb, certainly you might find others here, of course. Derry, oh, Mr. Lamb, well, that need not stop you. You need not mind. It stopped them. They mind me when they saw me here. They looked at my face and run. Okay, now understand these lines. So Mr. Lamb उसे कहते हैं कि तुम कभी भी यहाँ पे आ सकते हो. You're always welcome here.
Terry said that the place was not his. उसने कहा कि मैं कैसे आ सकता हूँ क्योंकि it's not mine. It was not his. Terry, he added that all his possessions were of for everyone. अब जो लैम्ब है वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, जो भी यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो तुम्हारी भी उतनी ही हैं, जितनी भी possessions हैं वो सबकी ही हैं. ठीक है. Terry asked him if he could visit the place again. एंड मिस्टर लैंड रिप्लाई डेट ही कुड एंड ही वुड फाइंड कंपनी टू. ठीक है. उसने कहा कि हाँ तुम आ सकते हो, तुम्हें यहाँ कोई ना कोई कंपनी भी ज़रूर मिल जाएगी. एंड नो बडी स्टॉप हिम फ्रॉम एंटरिंग दी. ठीक है. कि तुम्हें रुकने की ज़रूरत नहीं है. Derry said they would probably would like to enter the place upon seeing him. Maybe they would look at his face and get scared and run away. ठीक है. उसने बोला कि जो भी यहाँ लोग प्रेजेंट होंगे वो तो मुझे देख के भाग जाएंगे. ठीक है. मिस्टर लैम्ब क्या कहते हैं? They might not. You'd had to take the risk, so would they. Derry, no, you would. You might have me and lose all your other friends because nobody want to stay near me if they can help it. I have not moved. Derry, no. Okay, now Derry यही अभी भी उसके माइंड में यही है. मिस्टर लैम ने उसे रिप्लाई किया कि हो सकता है कि लोग ना भी डरें, डर भी जाएं, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तुम्हें चांस तो लेना पड़ेगा. ठीक है. देन डेरी उसे बोलता है कि तो आप यू हैड टू चूज आउट ऑफ हिम एंड द अदर पीपल एज विजिटर बिकॉज नो वन लाइक टू रिमेन नियर हिम. ठीक है. वो कह रहे क्योंकि मेरे पास तो कोई नहीं रहना चाहता है, तो आपको चूज़ करना पड़ेगा. देन मिस्टर लैम वुड लूज ऑल हिज फ्रेंड्स. ये भी कह रहे हो सकता है तुम्हारे सारे फ्रेंड्स आना बंद कर दें, तुम्हारे फ्रेंड्स ना रहें. एंड ही वॉज देयर एंड डिड नॉट रन अवे ऑन सीइंग डेरी. लेकिन मिस्टर लैम उसे कहते हैं डैट आई हैव नॉट मूव्ड, कि मैं इधर ही रहूँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा. ओके. तो डेरी आगे से बोलते हैं नो. एंड मिस्टर लैम व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट द किड्स शाउट लैमी लैम. अब मिस्टर लैम उसे बता रहे हैं कि जो किड्स हैं वो उसे टीज करते हैं, बट दे स्टिल कम इन टू द गार्डन. लेकिन वो फिर भी आते हैं इनटू माय हाउस. इट्स अ गेम. दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी. व्हाई शुड दे बी? बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, दैट्स वाई नॉट. ओके. तो वो कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो आते हैं, दे वर नॉट स्केर्ड ऑफ हिम बिकॉज ही वॉज नॉट स्केर्ड ऑफ देम. एंड डेरी डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वॉर. अब तो फिर से उसके लेग्स के बारे में डेरी पूछता है और मिस्टर लैब कहते हैं सर्टेनली. हाउ विल यू क्लाइंब ऑन अ लैडर एंड गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन देन. ठीक है. उसने बोला कि अगर तुम्हारी लेग नहीं है, तुम ये क्रैब एप्पल्स बच्चों को कैसे तोड़ के देते हो, तुम कैसे एप्पल्स को तोड़ते हो. मिस्टर लैम्ब ओ देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न टू डू एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट. ईयर्स आई टेक इट स्टडी. डेरी इफ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई. यू वर इफ़ यू वर ऑन योर ऑन. ठीक है. तब वो डेरी से कह रहा है that if he climbed the tree alone, he maybe fell from it and broke his neck. He would lie on the grass dead. And Mr. Lamsworth said that it could happen. ठीक है. वो कह रहे हैं कि ठीक है ना, इट कुड. उसने बोला कि तुम अगर अकेले से तोड़ोगे हो सकता है तुम गिर जाओ, मर जाओ, तुम्हारी नेक टूट जाओ, तुम टूट जा सकते हो. मिस्टर लैम कहते हैं यस इट कुड, कि ऐसा हो सकता है. देन उसके बाद देखेंगे इधर Derry, you said I could help you. Then Mr. Lamb, if you want to, but my mother will want to know where I am. It's 3 mile home across the fields and I'm 14, but they still want to know where I am. People worry, people first. Go back and tell them. ठीक है. तो डेरी को काफ़ी देर से यहाँ आ रखा था और वो कह रहे हैं कि हाँ मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ. मिस्टर लैम्ब एडिड दैट पीपल हैड द वरिंग. सो वो कह रहा है कि जो मेरी मदर है वो पूछ रही होगी. His mother would be waiting for him. So his home was 5 miles away across the field and he was 14 years of age, but still he was supposed to tell her where he was. As Mr. Lamb added that people had the habit of worrying, so Derry added that actually they were in the habit of fussing. Then Mr. Lamb asked Derry to go home and inform his mother of his whereabouts. ठीक है. तो कहते हैं कि आप जाओ अपने घर में जाके बता के आओ. Let's see the next line. Next page we have, it's a fine everything. You have got legs. Once I got home, they would never let me come back. Once you got home, you would never let yourself come back. You don't know what I could do. This time, no, only you know that. Dear, if I choose, or if you choose, I don't know everything, boy. I can't tell you what to do.
ओके नाउ इन कुछ लाइन से हमें कुछ पता चलेगा मिस्टर लैम के बारे में, उनकी इनसिक्योरिटीज़ के बारे में भी, क्योंकि अब तक हम यही देख रहे थे कि इज़ अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक पर्सन. He's a very not a person, he's a very optimistic person actually. And Mr. Lamb added that once home Derry himself would not feel like coming back. ठीक है, उसे मुझे लग रहा था कि तुम एक और घर चले जाओगे, तुम वापस नहीं आओगे. Derry started to say that if he choose, but was interrupted by Mr. Lamb. He said that Derry had to choose and he could not tell him what to do. ठीक है, तो मिस्टर लैम्ब को यहाँ लग रहा था कि एक बार अगर ये चला जाएगा तो वापस नहीं आएगा. ठीक है, बिकॉज मिस्टर लैम्ब ऑल्सो लॉन्ग्स फॉर अ रिलेशनशिप फॉर अ कंपनी. एंड उसने बोला, डैडी ने कहा इफ़ आई चूज़, लेकिन उसे बीच में ही रोक देते हैं. वो कह रहे हाँ इफ़ यू चूज़ आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय, आई कांट टेल यू व्हाट टू डू. ठीक है, तो वो उसे कह रहे हैं कि यू हैड टू चूज़ एंड यू कुड नॉट टेल हिम तुम्हें क्या करना है. देन नेक्स्ट पेज. डैडी दे टेल मी, डू यू हैव टू एग्री? I don't know what I want. I want something no one else has got or ever will have. Something just mine like this garden. I don't know what is it. Okay, let's see these lines. Derry said that his family forced him to do things their ways. ठीक है, लिखा ना, they tell me. डैरी कह रहा है कि वो मुझे फोर्स करते हैं, अपने हिसाब से काम करवाते हैं. सो मिस्टर लैम, डू यू हैव टू एग्री? वो कहता है आई डोंट नो, आई वॉन्ट समथिंग नो वन एल्स हैज़ गोट or ever will have, something just mine like this garden. I don't know what is it. ठीक है, तो वो डैरी वॉज कन्फ्यूज अबाउट एक्चुअली वॉट ही वॉन्टेड, बट वो कह रहा था समथिंग डैट वॉज ओनली हिज एंड नो वन हैड इट लाइक द गार्डन. ठीक है, तो वो अभी 14 ईयर्स का एक किड है, तो उसे इतना पता नहीं था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ अलग करना चाहता है, कुछ डिफरेंट. तो वो ऐसे एग्जाम्पल बोल देता है लाइक द गार्डन. ठीक है, सो मिस्टर लैम्ब, यू कुड फाइंड आउट. डैरी, हाउ? मिस्टर लैम्ब, वेटिंग, watching, listening, sitting here or going there. I'll have to see to the bees. Those other people who come here, do they talk to you? Ask you things? So Derry was in a confusion. So Mr. Lamb said that he could find out what he wanted. Then Derry Supuja asked how he could do that. Then Mr. Lamb told him to wait, watch and listen. He added that he had to see the bees. ठीक है. Then Derry asked him कि जो other visitors आते हैं क्या वो भी इसी तरह से आपसे बातें करते हैं? Then Mr. Lamb replied, some do, some don't. I ask them. I like to learn. ठीक है, तो वो कह रहा है कि हाँ कुछ करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं. Then Derry, I don't believe in them. I don't think anybody ever comes. You are here all by yourself and miserable, and no one would know if you were alive or dead, and nobody cares. ठीक है, तो अभी डैरी जो है वो कह रहा है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है. ही डिड नॉट बिलीव कि यहाँ पे कोई भी आता है. एंड मिस्टर लैम्ब लिव्ड अलोन बाय, वो अकेले रहते हैं. नो वन केयर्ड फॉर हिम. एंड मिस्टर लैम्ब सेड दैट डैरी कुड थिंक एज ही प्लीज. तो ये कह रहे हैं ना, यू थिंक वट यू प्लीज, कि जैसे तुम्हें लगता है तुम सोच सकते हो. डैरी, ऑल राइट देन टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स. ठीक है, तो उसके फ्रेंड्स के नेम पूछता है. मिस्टर लैम्ब कहते हैं टॉम, डिक और हैरी. देन गेटिंग अप, आई एम ऑफ डाउन टू द बीज. और उतने में उठ जाता है वो. ठीक है, सो वो कुछ नाम लेता है, उसके बाद लेफ्ट टू सी द बीज वगैरह, कि मैं बीज देखने जा रहा हूँ. ठीक है, डैरी सेड दैट परहैप्स मिस्टर लैम्ब वाज मेंटली चैलेंज. लिखा ना, आई थिंक दैट यू आर क्रेजी. जैसा लग रहा है कि ये कोई क्रेजी पर्सन है. ठीक है, चलिए और देखते हैं नेक्स्ट लाइन्स. डेट्स अ गुड एक्सक्यूज़. मिस्टर लैम्ब आगे बोल देते हैं कि हाँ ये अच्छा एक्सक्यूज़ है. डैरी, व्हाट फॉर? यू डोंट टॉक सेंस. ठीक है, डैरी तो पहले उसे कह रहा था दैट यू टॉक पेक्यूलियर थिंग, स्ट्रेंज बातें करते हो. मिस्टर लैम्ब, गुड एक्सक्यूज़ नॉट टू कम बैक. ठीक है, तो यहाँ से अब हमें पता चलेगा कि मिस्टर लैम्ब जो है ये एक्चुअली वांट्स कंपनी एंड ही एक्चुअली वांट पीपल विद हिम. तो उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि अगर ये एक बार चला गया तो ये वापस नहीं आएगा. एंड ही वांट दैट ही वुड कम बैक. देन सो बोला कि ये अच्छा बहाना है कि तुम अगर इस तरह के एक्सक्यूज़ दे रहे हो कि मेंटली चैलेंज था कि तुम वापस ना हो. यू हैव गॉट अ बॉन्ड ऑफ फेस एंड दैट्स अदर पीपल्स एक्सक्यूज़. ठीक है, सो डैडी, यू आर लाइक द अदर्स. यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट. यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस. यू आर फ्राइटेंड ऑफ इट. एंड इफ़ यू आर नॉट फ्राइटेंड, यू थिंक आई एम अगली एज अ डेविल. आई एम अ डेविल, डोंट यू? मिस्टर लैम्ब डजंट अप्लाई एंड ही हैज़ गॉन टू हिज बीज. ठीक है, तो डैरी अभी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड सा फील हो रहा था.
And Derry's face was then Derry said that Mr. Lamb was like other people. If he was not sorry that his face was burnt, then maybe he was scared of it. If not that, then maybe he thought that Derry was ugly as a devil. ठीक है. He added that he was a devil and Derry shouted. ठीक है. तो वो एक्चुअली वो ये कह रहा था कि तुम मेरे फेस से डरे नहीं, अगर तुम डरे नहीं हो, ठीक है, तो इसका मतलब मुझे मुझे अगली मानते हो. तो वो अभी चिल्ला के कह रहा था कि यस आई एम अगली. ओके. Then Derry quietly, no, you don't. I like it here. Pause. Derry gets up and shouts, I'm going, but I will come back. You see, you wait. I can run. I haven't got a tin leg. I will be back. ठीक है. So अभी जो मिस्टर डैरी हैं वो मिस्टर लैम्ब है, he had gone to see the bees and Derry became calm. ठीक है, वो चिल्ला रहा था पहले भी काम हो जाता है. And said that Mr. Lamb didn't think him to be a devil. ठीक है, ये कह जा and he got up and shouted that he was leaving and then he would return to see him. ठीक है, तो ये कह के उसे चला जाता है कि वो वापस आएगा. Okay, that he will be back. Derry runs off silence and the sound of the garden again. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. सीन 2. मिस्टर लैम अपने आप को कह रहे हैं that there's my dears that you seen to, you know, we all know I will come back. They never do though, not them, never do come back. ठीक है, तो यहाँ से मिस्टर लैम जो है वो अपने आप से बातें कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हाँ लोग ऐसे बोलते हैं लेकिन वो वापस नहीं आते हैं. ओके. नाउ इट्स नेक्स्ट सीन ऑफ फ्रॉम डैरीज हाउस. मदर, you think I don't know about him? You think I haven't heard things? Derry, you shouldn't believe all you hear. Mother, being told, warned, we have not lived here 3 months, but I know what there is to know and you are not going to back there. ठीक है, तब जो डैरी है, his mother asked that what did Derry think of her. She had already heard about Mr. Lamb and Derry told her not to believe what others said, but she warned him that she knew what was required to be known about any person, therefore asked him not to go back. ठीक है, तो मदर अब ये बोल देती है, उसे वार्न करती है कि तुमने वहाँ नहीं जाना है क्योंकि उसे पता है वो पर्सन कैसा है. ओके, नेक्स्ट देखेंगे अभी. सो डैरी उसे बोलता है, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ? व्हाट डू यू थिंक ही इज़? An old man with a tin leg and he lives in a house without curtains that has a garden and I want to be there and sit and listen to things. Listen and look. Their mother said, listen to what? Derry, bees singing, him talking and what's he got to say to you? ठीक है, तो डैरी जो अपनी मदर को क्लियर करने की कोशिश कर रहा है, वी कह रहा है that not to believe others and asked her the reason of her fear. ठीक है, तो पूछा कि क्या कारण क्या है. He told her that Mr. Lamb was just an old man with a tin leg and a big house and he said that he wanted to go back and listen to the things. ओके, देखते हैं उसकी मदर क्या कह रही है आगे. And that's what he got to say to you. ठीक है, मदर अभी क्यूरियस हो रही है. His mother was curious to know that what was it that he wanted to listen. ठीक है, ऐसा क्या है वहाँ पे. Derry, things that matter, things nobody else has ever said, things I want to think about. Mother, then you stay here and do your thinking. You are best off here. ठीक है, वो कह रहा है कि मैं he replied that he wanted to hear bees singing. He wanted to listen to what Mr. Lamb said, but she didn't find it suitable and she told him to stay at home. ठीक है, and think about whatever he wanted to hear. ठीक है, तो वो कह रही है कि तुम्हें जो सोचना है तुम घर पे बैठ के सोचो, बाहर तुमने नहीं जाना है. ओके, सो अब देखते हैं नेक्स्ट. What Derry said. I hate it here. Mother, you can't help the things you say. I forgive you. It's bound to make you feel bad things and say them. I don't blame you. Okay. So Derry said that he hated to remain at home and his mother excused him for speaking wrong because he felt bad and so spoke the way. Derry said that it had nothing to do with his face. The important thing was how he thought and what he saw or heard. He announced that he would go back into the garden to help Mr. Lamb with the crab apples and his mother tried to stop him but he ran away shutting the door behind him. ठीक है, तो ये लाइंस में हम देखेंगे कि डैरी जो है इट्स गॉट नथिंग टू डू इन फेस. उसकी मदर को लगता है कि चलो ये अच्छा नहीं फील कर रहा होगा तो बोल रहा है तो बोलने दो. ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि मुझे फेस की कोई बात नहीं इसमें. आई डोंट केयर अबाउट डैट. मुझे अपने फेस की कोई चिंता नहीं है एंड इट इज़ंट इम्पॉर्टेंट. आई रियली इम्पॉर्टेंट है एंड इट्स वॉट आई थिंक एंड फील. जो मैं फील कर रहा हूँ वो सोचता हूँ वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. मतलब अभी जो इसकी बातें थी वो उनमें थोड़ा चेंज दिखा गया है. पहले वो यही कहता था दैट फेस इज़ मच इम्पॉर्टेंट
ठीक है, अभी हम देखें उसने लिखा आई डोंट केयर अबाउट डैट, आई व्हाट आई थिंक एंड फील व्हाट आई वांट टू सी एंड फाइंड आउट एंड आई एम गोइंग टू बैक देयर ओनली टू हेल्प विद द क्रैब एप्पल्स। ठीक है, तो वो चला जाता है, मतलब मधु से कहती है यू विल स्टॉप हेयर बट डेयर यू नो नो बिकॉज इफ आई डोंट गो बैक देयर आई विल नेवर गो एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन। ठीक है, द डोर स्लैम्स, डेयरी रन्स। ठीक है, डेयरी जो है वो चला जाता है वहाँ से। अब हमारा स्टार्ट होता है सीन 3। मिस्टर लैम्स गार्डन, garden sounds, the noise of a branch. Mr. Lamb's steady desk got it, that's it. More of apples fall. And again that's it. And a creak, a crash, the ladder falls back, and Mr. Lamb with it, a thump, the branch swishes back, creaks and silence, and Derry opens the garden gate, still panting. Derry, you see, I came back. You said I wouldn't, and they said, but I came back, I wanted. He stops dead silence. मिस्टर लैम्प, मिस्टर यू हैव। तो देखेंगे अब सीन में क्या होता है। द थर्ड सीन इज इन दैट मिस्टर लैम्प्स गार्डन। देयर वॉज द साउंड ऑफ द ब्रांचेस एंड मिस्टर लैम्प वॉज टॉकिंग टू हिमसेल्फ व्हाइल ही वॉज प्लकिंग दी एप्पल्स। ठीक है, एप्पल्स तोड़ रहे थे, वो अपने आप से बातें कर रहे हैं। सडनली एक हार्श साउंड आती है क्रैकिंग वुड की, एंड जो लेडर है दैट्स फेल ऑन द ग्राउंड एंड मिस्टर लैम्प ऑल्सो फेल टू। Derry opened the gate, but he was still breathing rapidly and declared to Mr. Lamb that he had returned. ठीक है, पेंटिंग मतलब होते हैं बहुत सांस चढ़ी हुई होती है उसे, और वो बोलता है कि वो वापस आ गया है, आई केम बैक। ठीक है, एंड मिस्टर लैम दैट ही हैड रिटर्न, ही लुकड एट हिम एंड फाउंड हिम लाइंग ऑन द ग्राउंड, लेकिन वो देखता है वो नीचे गिरे होते हैं। ही वेंट नियर हिम एंड ट्राइड टू टॉक टू हिम बट नो वन रिप्लाइड. Derry kept on calling him by his name and suddenly started crying. He did so because he realized that Lamb was dead. ठीक है, सो ये हमने यहाँ पे कब ये हमारा इस तरह से आपकी बुक में पिक्चर भी है जिसमें मिस्टर लैम जो है वो ऐसे गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लैडर के साथ, लैडर भी साथ में गिरी है। सो फाइनली जो मिस्टर लैम है उनकी डेथ हो जाती है एप्पल्स को तोड़ते हुए। एंड दिस इज़ द लास्ट लाइन, आई केम बैक लैमी लैम, आई डिड come back, and Terry begins to weep. Okay, so now he realized that Mr. Lamb was dead, so he started crying. Okay, so this is the complete explanation of word to word, line to line explanation of the chapter, and this is very important plus 2 class for you people to read each and every word and each and every line, because there is a question of 4 marks which comes in your exams, which is totally based on your reading skills. So it's important for you people to revise the chapter and watch the video again and again and try to understand the each and every line. Okay, here are some question also, that what is it that draws Derry towards Mr. Lamb in spite of himself? Then in which section of the play does Mr. Lamb display signs of loneliness and disappointment? ठीक है, आपको कब से पता चलता है कि वो भी he is also feeling lonely, and actual pain or inconvenience caused by physical impairment is often much less than the sense of alienation. ठीक है, ये इसका क्वेश्चन है जो कि अपनी according to your on the basis of reading you can give the answers also. So this is the complete explanation of the chapter.